यार हंसता है ना, यार हंसता नहीं सोच रहे थे, सोच कर Gurudev was looking at him. He was talking to him. How is looking? Nice duty, huh? It's Prabhuji today. Radhakant Prabhuji. Nice duty, huh? Doesn't have to worry. Cannot balance yet. No, it's so stable. Nearly there. He's nearly there, sitting by himself. Oh, yes. Just a while. Huh? Huh? Sometimes a bit windy. Yeah. You have to do much. You have to do much. ठीक है हाँ Need to come on in. Otherwise, I have to share with Krishna Gopal. Okay. I don't know. Generally check in 12. You will take time. You can take earlier if you want. And I distribute late for those who are not fasting out. Huh? You can just do. They already took. Yes. No problem. Huh? Who has questions? Anybody has questions? When you are perform Aarti, Mangal Aarti, then you have to have the mood of Lalita Sakhi and you have the mood of the gopis. I've read. You have different kind of moods when you are performing Aarti. And you have a specific mood for morning Aarti. Yeah, for Mangal Aarti. Can you explain? That is called Nishanta Lila. Mangala Sri Guru Gaura, Mangala Murati, Mangala Sri Radha Krishna, Yugala Pedi. Mangala Nishanta Lila, Mangala Uday. Actually, Bhakti Prakan Kesava Goswami Maharaj, this Mangalarti composed the same mood of Vishwanath Chakravarti Paz Grantha that is called Sri Krishna Bhavanamrita Grantha. And also Krishnadas Kaviraj Goswami Govinda Lilamrit Grantha. That is called Ashtakalin Leelas India. Ashtakalin Leelas 8 part of the days, the how Radha Krishna they perform this Leela. That is called Ashtakalin Leela. Ashtakalin Leelas first, that is called Nishanta Leela.
Nishanta means what do you mean Nishanta? The end of night. Srila Bhaktivinoda Thakur also Bhajan Rasa first chapter of Grantha, her name Bhajan Rahasya Grantha, he also explained that is called Nishanta Bhajan. Nisa Anta means Nishanta. Nisa means night. Anta means end, the end of night. That is saying Vibhavuri Seso, Aluko Praviso, Nidra Sari Utha Jivo, Bola Hari Hari, Mukunda Murari. This even Nishanta Lila, Nisa means night, Anta means end. That is called end of night. After these sweet pastimes, our Bhaktivinoda Thakur explained and all our Goswamis, that mood is very high class mood. Bhav. And even you cannot get this mood in any others Gaudiya mode also. Bhakti Prakam Kesava Goswami Maharaj is special manifested this and mood. And same mood of Vishwanath Chakravarti Pad Grantha, what Grantha did he say? Sri Krishna Bhavanamrit Grantha. And also Krishnadas Kaviraj Goswami Grantha, Govinda Lilamrit Grantha. Actually, this mood is that very high class mood. Last night, Radha and Krishna and Govinda they performed sweet lila. That is called Raslila. Then after Raslila, then all they become very tired and they were taking rest their own place and Kunja. And Radha and Krishna they also took rest in their Kunja. Then about the end of night, that is called what time? That is called dawn. Understand? क्या बोलते इसको? Dawn. माने सूर्य उदय होने वाला है। अंधकार भी चले गए और अभी dawn का. Sun is about to rise. Sun about to rise. Yet not sunrise. Understand? So now Radha Krishna still they were taking rest because they were become very tired. So they are taking rest. But here Jogmaya Vrindadevi had duty. How Radha Krishna they will return back their home. They have to return back their home. Ultimately Srimati Radhika, she have to return back to Javat and Krishna have to return back Nandagaon. Otherwise, Naralila, human being Lila will be disturbed. Do you understand? According to the rules and regulations of the society, Radha Krishna, they should not meet together in public place. Or for this regard, Jogmaya Vrindadevi, she is arranging this way, they have to return back their home. Because Radha and Krishna in Brajlila, they are not married lady or not married person. They have to return back their home. Otherwise, the rules and regulations of the society will be disturbed. So for this regard, the transcendental Leela, Aprakshita Leela, Radha and Krishna, they have to return back their home. But Radha and Krishna both, now we are sleeping in the Kunja. Then first Vrindadevi is thinking how Radha and Krishna they would return back their home and first they should
What do you call it? Wake up. For this, the Bhaktivinoda Thakur sing this song also. Dekhiya urunodaya Vrinda Devi ব্যস্ত হয় কুঞ্জে নানা রব করাইল সুখসারি পদ্মসনি উঠে রাধা নীলমণি. So Vrinda Devi, her duty is that they should separate, right? They should return back their home. But still they were deep sleep. So Vrinda Devi, she also gave the order, first the birds. Understand, birds. The birds, they are small birds, very early in the morning, little bit dark. That time it got dawn. And that time they also just little bit coming out from their nest, and with their wings they are making the sound, and making the or little bit chirping, ching 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 ching, and also with their wings they are making the sound. That means Vrinda Devi is thinking, if the birds will making the sound, maybe Radha Krishna, they will wake up from their sleep. But Radha and Krishna, now they're deep sleep. Yeah. Then what happened? In the meantime, what is it called? Peahen. What is it called? Murga. Cockroach. Cockroach. Peahen. Murga and Murgi. Peahen. Cockroach and Chicken. Their nature also swabhav, just 4 o'clock they will make also sound. Cocker, caw. They are making sound very loudly. In the meantime, some Sakhis of Srimati Radhika, they are outside. They are saying, hey, chicken. क्या बोलते हैं? Cockroach. Rooster. Rooster. Hey rooster, if you again make the sound and disturb the sleepiness of our Samini Srimati Radhika, then you have to go to the hell, Jamalok. Then they afraid. Rooster, they afraid. Now Vrinda Devi thinking how Radha Krishna will wake up. Then Vrinda Devi again, they give the sound, they give the instruction, the other birds. But still Radha and Krishna, they are taking rest. Then, in the meantime, one monkey, her name is called Kakhati. Then Kakhati, that monkey, sea monkey, she came very close to the kunjas of Radha and Krishna and making sound. Then here one the Sakhis of Srimati Radhika, her name is called Raman Manjari. So one Sakhi of Raman Manjari, one Sakhi told Raman Manjari, hey Raman Manjari, you have to go and stop that the Kakhati, the sea monkey, because she is making disturbance, the sleepiness of our Samini Radha, Srimati Radhika. This is your duty. Then Raman Manjari, she came and chastised the Kakhati. Hey, get out. Then Vrinda Devi thinking what to do now. Then Vrinda Devi again she gave the instruction, the pig, or is called papagai. Parrot. He parrot and she parrot. Then he parrot and she parrot start to glorify Radha Krishna's sweet lila with nice, beautiful and poetry, drum, poetry. So very nice, beautiful tune. So saying, Dekhiya urunodaya Vrinda Devi ব্যস্ত হয় কুঞ্জে নানা রব করাইল সুখসারি পদ্মসুনি. Here sukhasari means, that's called, what do you call? Parrot. Male and female. Male and female parrot. Actually, they glorify Radha Krishna's sweet lila. Actually, what they are saying? Same lila they are saying, singing with nice melody. What saying? The rays of the moon is coming.
the rays of the moon, that Sanskrit word, that is called Jatil. What is it? Jatil. Yeah? The rays of the moon, first rays of the moon coming, and that is called the Jatil. And so when Suk and Sari chanted this word, the Jatil is coming. Mane? The rays of sun is coming. But Radha and Krishna, they are thinking, what is coming? Jyotila is coming. Jyotila is coming. Then Radha and Krishna, they special Radha Srimati Radhika, she afraid, and very quickly she wake up from her bed, Kunja. Then first Manjari, Silva Manjari, all the first enter in the Kunja and clean that place and everything. Then Radha and Krishna seated on their Singhasan. Then all the Manjaris, they also do Arati. This is the mood. So it's saying, Dekhiya Urunadai, Vrinda Devi Vastahai, Kunje Nana Rabakarailo, Sukasari Paddasini, Uti Radha Nilamani, then Duhe Sacheta Hoya. Then Radha and Krishna, they also left the Kunja, and Krishna is going to Nandagaon, and Srimati Radhika, she is going to Jabat with her Sakhis. Actually, our Mangalarti, this mood, highest mood. You cannot find out any Gaudiya Math this mood. Bhakti Prakanand Kesava Goswami Maharaj, he collected all this mood, bhav, from Vishwanath Chakravarti Pad Grantha and Krishnadas Kaviraj Grantha. So we are singing this mood, Mangala Arati. What is saying? Mangala Sri Guru Gaura, Mangala Murati, Mangala Sri Radha Krishna, Jugala Piriti, Mangala Nisanta Lila, Mangala Udaye, Mangala Arati Jage, Bhakata Hidaye, Tomara Nidrai Jeev Nidrita Dharai, Tava Jagarane Vishwa Jagarita Hai. Actually, all the living entities is completely what? Elucidated with the Maya of Krishna, Krishna Maya. Krishna, two kinds of Maya. One is called Yogamaya, another is called Mahamaya. Conditioned soul, they completely elucidate with Krishna's which Maya? Mahamaya. And those who are liberated person, they also absorb with Krishna Lila. How? Krishna's Yogamaya. You remember, Krishna two kinds of Maya. One is called Yogamaya, another is called Mahamaya. You are sleeping which Maya? Which Maya are you sleeping? Mahamaya or Yogamaya? Mahamaya. Understand? Or those who are Suddha Bhakta, actually they also always absorb Radha Krishna's Lila with Krishna's Yogamaya. So I say, Tomara Nidra Nidita Tava Jagarane Vishwa Jagarita Shubha Dishti Karo Prabhu Jagatel Prati Jaguke Hridaya Mohar Sumangalarati. Dear Bhakti Vinod Thakur, in this song is saying, Hey Prabhu, oh my Lord, please give mercy upon to us. And so have mercy to us. Shubha Dishti Karo Jagatel Prati Jaguke Hridaya Mohar Sumangalarati. Sumangal Arati. Su means beautiful. Mangal means auspiciousness. Arati means is what? What do you mean Arati? Remember, Arati. Sanskrit word. A means direct. Roti means deep attachment. That means how deep attachment manifested in our heart towards Radha and Krishna. राधा कृष्ण के प्रति हमारे आसक्ति व प्रेम कैसे उत्पन्न हो, कैसे प्राप्ति हो, ये हमारे उद्देश्य है. भजन साधन के उद्देश्य क्या है? What is the supreme goal, highest goal of our bhajan and sadhana? How will we deep attachment with servitual mood of divine couple Radha and Krishna? राधा कृष्ण की सेवा हम कैसे प्राप्ति करें? हम लोग के जीवन के उद्देश्य एक ही है. क्या? हम राधा कृष्ण की सेवा कैसे प्राप्ति करें? वो सेवा हम कैसे प्राप्ति होगी?
है? जब हमारे इस प्रकार प्रेम उत्पन्न होगा, है डीप अटैचमेंट, आसक्ति से कहा जाता है। सेवा तब होता है जब किसी के प्रति हमारा आसक्ति हो। आसक्ति समझते हो? डीप अटैचमेंट है, और वही परिपक्व होकर के प्रेम के रूप में प्रकाशित होता है। जब आसक्ति अटैचमेंट, डीप अटैचमेंट मैच्योर and manifested in the form of love, that our servitual mood coming in our heart. प्रेम में प्रेम बिना सेवा नहीं होती है। प्रेम जिसके हृदय में जितना ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उनके हृदय में उतना ही क्या होता है? सेवा की भावना उत्पन्न होता है। जैसे एक साधारण उदाहरण देता हूँ, माँ बच्चा को सेवा करती है, कैसे? प्रेम के द्वारा। वो किसी का वात्सल्य प्रेम है, वात्सल्य प्रेम के द्वारा माँ बच्चा को क्या करती है? सेवा करती है। ये सेवा की भी कैसे होती है? एक होता है दो एक संबंधक ज्ञान है, हाउ विल सर्व टू लॉर्ड, भगवान की सेवा कैसे करो? दो प्रकार से, दो दिख से आता है। देयर आर टू सिम्टम्स of to serve to Lord. एक होता है संबंधक ज्ञान, क्या बोला? नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप, संबंध। और दूसरी क्या होता है? ममता। ममता समझते हो? ममता मीन्स पॉजिटिवनेस, ममता। यदि ममता नहीं हो, सेवा नहीं होगी। ममता क्या है? ये मेरा है, सेवा नहीं होगा। जैसे माँ क्या सोचती है? ये पुत्र व बालक मेरा है, मेरी सेवा। ममताधिक्य, ममता के आधिक्य जब होता है, आधिक्य समझते है? ममता जब अत्यंत जब घनीभूत हो जाए, कंडेंस फॉर्म हो जाता है, वही ममता आकर के हमारे हृदय में ऐसे करीभूत कर लेते हैं, अंकित कर देते हैं, मान डीप कंडेंस फॉर्म आता है, तब सेवा की भावना उत्पन्न हो जाता है। तुम्हारे हृदय में है ही वो सेवा की वृत्ति। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक को बनाए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। यू हैव एवरीथिंग इन योर हार्ट, जस्ट यू मैनिफेस्ट योरसेल्फ एंड डू भजन एंड साधना। किंतु जब तक संबंध ज्ञान नहीं हो, वो प्रकाशित नहीं होगा। If you have no knowledge of relationship, this servitual, transcendental servitual mode, अप्राकृत सेवा will not manifest from your heart. ये प्लीज। इसलिए पहले क्या होना चाहिए? संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप। वो नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप कौन देंगे? कौन देगा? कहाँ से मिलेगा? सुपरमार्केट से खरीद करके लाओ नहीं, इसे कहते हैं वही देता है गुरुपाद। इसलिए गुरुदेव के कहा जाता है अखंड गुरुदत्त बलदेव प्रभु। एक्चुअली ये कहाँ से आते हैं? बलदेव प्रभु से। ऐसे बलदेव प्रभु के कहा जाता है क्या? अखंड गुरुदत्त। बलदेव प्रभु इज कॉल्ड द अनडिवाइडेड गुरुपाद। वही बलदेव प्रभु का गुरुपाद की कृपा से हमारे हृदय में क्या उत्पन्न होगा? संबंध। इसे कहते हैं संबंध लैया बजे, तारे कृष्ण नहीं तजे, आर सब मरे अकारण। संबंध लैया बजे, वन हु परफॉर्म्स भजन एंड साधन with the knowledge of relationship, then he will attain his goal. And who has no relationship, he cannot attain. So this Samandha Gyan is coming from Guru Padma. So for this regard, Gurudev is called our Samandha Pradata, Samandha Gyana Pradata. Pradata means one who gives the Samandha Gyana, knowledge of relationship in our heart. That is called Guru Padma. So just I also explained this, how Radha and Krishna, they slept, then Manjari they entered in that the Kunjo and the claim, and they also worship different Radha and Krishna. So देखिए और उन्होंने देखकर मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूर्ति
मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल विरिति मंगल निशांत लीला मंगल उदय मंगल आरती जाके भक्त हृदय तुम्हार निद्राय जीव निदित धराय तब जागरणे विश्व जागरित है शुभ दृष्टि कर प्रभु जगतेर प्रति जागुक हृदय मोर सुमंगल आरती है। इसके बाद है? तुम्हारा हृदय ये इसके बाद क्या होती है? ये राधा कृष्ण की कैसे लीलाएं वो वर्णन होती जा रही है। कुसुमित सरोवरे कमल हिल्लोल, बोले राधा कृष्ण की जो लीलाएं किस प्रकार होती जा रही। अर्थात प्रेम रूपी सरोवर, सरोवर समझते हो क्या है? द पॉन्ड ऑफ द डिवाइन लव ऑफ राधा एंड कृष्ण। राधा कृष्ण की प्रेम रूपी सरोवर में मानो दो कमल खिले हुए हैं। There are two blossom lotus in there. Who are they? That is Radha and Krishna. कुसुमित सरोवरे कमल हिल, और वही राधा गोविंद की सेवा की भावना यहीं पर दिखा रहे हैं। तो ये समस्त भावना ये दिखाते हैं। आप मंगल आरती जो करते हैं, मंगल आरती की भावना यही है, ये राधा गोविंद निशांत लीला के बाद जो है अपने अपने घर में जाए और फिर दोनों की फिर मिलन होगा। क्योंकि प्रेम राज्य में दो वस्तु होता है, एक होता है मिलन और एक होता है विरह। मिलन मीन्स मीटिंग और विरह मीन्स सेपरेशन। जैसे एक कॉइन है ना, एक कॉइन की दोनों साइड समान मूल्य है। देयर आर सेम वैल्यू ऑफ द वन टू साइड्स ऑफ द कॉइन। इन द सेम वे इन द रिलम ऑफ प्रेम राज्य में ये मिलन और विरह की भावना एक ही रहता है, एक ही मूल्य है। केवल विरह किस लिए कराते हैं? सेपरेशन नरिशमेंट द मीटिंग है। क्योंकि सेपरेशन होने के बाद मिलन की प्रगाढ़ उत्कंठा होता है। हम जिससे सेपरेशन हो जाता है उसके साथ मिलने के लिए क्या होता है? उत्कंठा जागता है। इसलिए यही मिलन क्या करता है? मिलन क्या करता है? सेपरेशन करा देता है। और सेपरेशन क्या करते हैं? मिलन कराते हैं। भावना उसी प्रकार आता है। मिलन में विरह और विरह में मिलन होता है। इसलिए हम जो महामंत्र जप करते हैं, ये महामंत्र की जप में है क्या चीज? हरे कृष्ण जप करते राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये राधा कृष्ण के मिलन हो रहे हैं। हरे कृष्ण करे ना, ये राधा कृष्ण का मिलन होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, फिर विरह हो जाता है, फिर मिलन होता है। इसके बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है, आपको मिलेगा उसमें क्या भजन रहस्य के ग्रंथ में पहली चैप्टर में पढ़ना उसको। गुरुदेव की जो है ग्रंथ जो प्रकाश किया भजन रहस्य ग्रंथ, उसमें हरे कृष्ण महामंत्र की मिलन और विरह पर गच्छन है। देयर आर एक्सप्लेनेशन अबाउट महामंत्र मीटिंग एंड सेपरेशन। कैसे राधा कृष्ण मिलन होती जाए, कैसे विरह होती है, ये समस्त दिखा गया। क्योंकि जिस वस्तु से हमारा जितना विरह हो जाता है, सेपरेशन होता है, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए उतना ही क्या होता है? उत्कंठा होता है। और जिस वस्तु में कोई विरह ही नहीं है, मिलने की उत्कंठा नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं, आपके जेब में एक सोने के कॉइन था, सोने का कॉइन, गोल्डन कॉइन, एंड इनसाइड योर पॉकेट। और वो सोने के कॉइन क्या हो गया? अकस्मात वो एक्सीडेंटली गिर गया। अच्छा, उस समय आप क्या करोगे बताओ? बहुत मूल्यवान है,
वेरी वैल्यूएबल है, वो सोने के कॉइन था। तो उस सोने के कॉइन को चिंता होगा वो कहाँ मिलेगा, है कैसे मिलेगा, क्योंकि जो वस्तु खो जाने पर उस वस्तु की प्राप्ति के क्या होता है, चिंतन होता है। प्राप्ते वा विनष्टे, स्वयं भगवान इस कथा को भी सुनाए गोपियों को। कोई वस्तु हम जब प्राप्त करते हैं, उस वस्तु जो हम मिल जाते हैं, उस वस्तु के प्रति हमारे जो आदर व जो भाव रहता है, किंतु उस वस्तु खो जाने पर उस वस्तु के प्रति और भी प्रगाढ़ अनुराग जलता है, उसके लिए आप चिंतन अधिक होता है। कोई वस्तु आपके खो जाए, बहुत मूल्यवान वस्तु बहुत दिन तक आपके पास रहे और अकस्मात वो वस्तु क्या हो गया, सडनली वो खो गया, है? उस वस्तु के लिए आपको क्या होगा, चिंतन अधिक होता है। बोले जब खो जाता है तो कोई मिलेगा कि नहीं मिले, बोले मिलेगा। बोले कैसे मिलता है, उस वस्तु के चिंतन करते करते है, वो सपन में, खाने में, सोने में वही वस्तु आपको दिखाई पड़ता रहता है। जैसे किसी के पास एक कुत्ता था, विदेशी लोग कुत्ता पालते हैं ना, कुत्ता के बहुत प्यार करता है। यहाँ तो भी सोते हैं अपने गोद में लेकर के सोते हैं, रेजाई डाल करके गोद में लेकर के वो सोता है। कुत्ता है तुम्हारे घर में? नहीं है। मैं विदेश में किसी घर में जाता हूँ, देखता हूँ वो कुत्ता को कहाँ रखते हैं, अपने कुत्ता के जो है अपने बिस्तर में है, और ला करके रेजाई डालकर, रेजाई समझते हो, ब्लैंकेट सोता है। और कुत्ता कभी कभी वो रेजाई से बाहर आके चले जाते हैं, कौन कौन को करते हैं, फिर वो उठ करके फिर कुत्ते के अंदर लाते। अच्छा अकस्मात वो कुत्ता यदि मर जाए व कहीं चले जाए वो क्या करेंगे आप बताओ। उस कुत्ते की चिंता करता है, क्योंकि कुत्ता उनके इतना प्यार हो जाता है, उसके सिवाय वो रह नहीं सकता। तो सोचता है वो कुत्ता कहाँ गए, और उस कुत्ते के चिंतन करते 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 इतने भाव में डूब जाता है, और ऐसे सपनों में आता है वो कुत्ता उसके पास ही है। वही कुत्ता उसके पास क्यों 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 कर रहे हैं, वही कुत्ता जो है उनके रेजाई के अंदर में सोए हुए। देखो है बिछोड़ में, हमने विरह में वो कुत्ते के मिल रहा है। इस जड़ जगत में जो प्रेम, हम जड़ प्रेम जिसको कहा जाए, देखो विरह में कैसे मिलन हो जाता है। वो सोचता है कुत्ता हमारे पास है, तो कुत्ता तो मर गए तो चले गए, किंतु कुत्ते में इतना आसक्ति है, उसी के आप अपराकृत जगत में ले जाओ, जा प्रति अविवेकान विशेषु अनुपायिनी। हमारे शिला जीव गोस्वामी पाद प्रति संदर्भ में कहते हैं प्रेम है क्या चीज। बोले प्रेम है जिस इस जड़ जगत में जिस प्रकार विषयी लोग जड़ वस्तु के प्रति आसक्ति रखते हैं, जा प्रति अविवेकान विशेषु अनुपायिनी। विषयी लोग जैसे विषय में जैसे निरंतर उसमें क्या होता है, अभिष्ट रहता है। तो उसी प्रकार प्रेम ऐसे वस्तु है, भगवान में हम कैसे अभिष्ट हो गए। प्रेम में दो वस्तु होता है, एक होता है अभिष्ट और एक होता है उत्कंठा। अभिष्ट मीन्स अब्जॉर्प्शन, अभिष्ट हो जाए, और दूसरी क्या होता है उत्कंठा। उत्कंठा मीन्स इगरनेस, वो वस्तु का हम कैसे प्राप्ति करें। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया, एक सोने के कॉइन आपके पास था और किसी कारण से आप खो गए, चला गया, नष्ट हो गया। देखो वो अधिक मूल्यवान होने के नाते है, और उसके चिंतन आपको पास तो कहाँ मिलेगा। प्रेम तो उसी की कहा जाता है। इस जगत में हम जड़ प्रेम कहते हैं, और अपराकृतिक जगत में उसको क्या कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल लव कहते हैं। इस जड़ जगत में जड़ प्रेम कहा जाता है, किंतु ये जड़ प्रेम जो है, मटेरियल जो लव, वो दुखदायी होता है, और वो एक दिन खो ही जाएगा, वो कभी वापस नहीं आएगा।
जैसे मैंने कुत्ते का उदाहरण दिया, जैसे किसी के पास एक कुत्ता था, कुत्ते के प्रेम करने लगे है? और कुत्ता मर गया, किंतु कुत्ता कभी आएगा लौट करके? नहीं आएगा उसके पास है? और वही कुत्ते को चिंतन करते करते अगले जन्म में नेक्स्ट लाइफ ही विल बिकम डॉग। ये देखो कैसे उल्टा हो गया है? जैसे भरत महाराज हिरण शिशु के प्रति आसक्ति हो गया और हिरण के चिंतन करते करते दूसरी जन्म में उसको क्या मिला? क्या जन्म मिला जानते हो? हिरण शरीर मिला। यही तो है, इसलिए गीता में तो भगवान कह रहे हैं मृत्यु के समय मनुष्य जैसे जैसे चिंतन करके शरीर छोड़ेगा और नेक्स्ट लाइफ उसी शरीर को प्राप्ति होगा। जंग जंग बापी स्मरणम तज्जन्ते कलेवरम, गीता में कहा ना, मृत्यु के समय मनुष्य जैसे जैसे चिंतन करेगा नेक्स्ट लाइफ उसको क्या मिलेगा? वही शरीर मिलेगा है? यदि आपके हिरण के प्रति आपकी आसक्ति हो गया, हिरण के चिंतन करते करते शरीर छोड़ा, अगले जन्म में क्या शरीर मिलेगा? हिरण मिलेगा। कुत्ते के प्रति प्रेम हो गया ना है? मैंने कहा ना कुत्ते के इतने प्रेम करते हैं रजाई में ढक करके अपने गोद में देख करके सोते हैं, उसके एम्ब्रेसिंग करते हैं, किसिंग करता है, कुत्ते के लेकर के क्या क्या करते हैं, किंतु वो पता नहीं है अगले जन्म में आपको उसके क्या जन्म होगा? कुत्ता जन्म मिलेगा। हाँ, कुत्ता जन्म मिलेगा तो आप कुत्ते की करो, हम थोड़ी मना करेंगे। किंतु भागवत की कथा है, हम थोड़ी आपको मिल कर है? भरत महाराज वो हिरण को एम्ब्रेसिंग किया, किसिंग किया और इसने प्रेम किया, फिर दूसरी जन्म में उसको क्या जन्म मिला? हिरण जन्म है। किंतु भगवान गीता में कहते हैं अंत काले जो मांग स्मरण मरणम, अंत काल मृत्यु के समय है कोई यदि मुझे चिंतन करे और मुझे चिंतन करके शरीर छोड़े, वो क्या करेगा? मुझे ही प्राप्त करेगा। देखो तो कौन सा चिंतन करना अच्छा है कि तो कुत्ते का और भगवान को? आप बताओ आप क्या चाहते हो? भगवान की तरफ जाना चाहते हो, कुत्ते की तरफ जाना चाहते हो? आप बताओ हाँ, क्या प्राप्ति, क्या शरीर प्राप्त करना चाहते हो? कुत्ता शरीर ना भगवान की तरफ जाना है? नहीं, भगवान की तरफ जाना है, भगवान की आसक्ति हो जाए। ये नहीं, भागवत में तो और अनेकों कथाएं, जैसे पुरंजन पुरंजनी की कथा है, पढ़ना श्रीमद् भागवत। पुरंजन पुरंजनी की कथा, पुरंजन रूपी जीव और पुरंजन रूपी माया। पुरंजन जीव पुरंजनी के प्रति आसक्ति हो गई, अगले जन्म में उसको क्या मिला? पुरंजनी जन स्त्री शरीर उसको प्राप्त हुई। इस संसार में जीव का जो ये शरीर जो स्त्री शरीर और पुरुष शरीर कैसे प्राप्ति होता है? इसी कारण से भागवत में, श्रीमद् भागवत में यही पुरंजन पुरंजनी के उपाख्यान के द्वारा दिखाया गया है। अगले नेक्स्ट लाइफ व्हाट बॉडी विल यू गेट? फीमेल बॉडी और मेल बॉडी, दिस इज डिपेंड ऑन लाइफ। अभी आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो है वो अगले जन्म में आपके पास है। मकान बना रहे हो आप, कौन सा मकान बना रहे हो है? ये हमारे शरीर मकान है ना, कल कहा था ना, ये शरीर क्या है? हाउस। इस घर में आप रह रहे हो। अच्छा, अगले जन्म में आपके कौन सा घर में रहना है? कौन सा घर में आपको रहना है? मकान में रहना है, स्त्री रूपी घर में अथवा पुरुष रूपी घर में रहना है। अभी से बनाते जा रहे हैं, अर्थात जिसके प्रति जब आसक्ति हो जाओगे नेक्स्ट लाइफ वह शरीर रूपी घर आपकी क्या होगा? प्राप्त होगा, मिलेगा है। किंतु देखो कोई भगवान के भजन करे, भगवान में आसक्ति हो जाए है, फिर ये मनुष्य शरीर और स्त्री शरीर उसके प्राप्ति नहीं होगी। उसे क्या मिलेगा? चित्त शरीर मिलेगा, ट्रांसेंडेंटल बॉडी, आत्म शरीर, और वो आत्म शरीर में भगवान की प्राप्ति करेंगे। यही भजन की हमारी तात्पर्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत में नारद जी के उपाख्यान कथा सुनाया, नारद और व्यासदेव के उपाख्यान कथा सुनाया। नारद जी अपने जीवन की इतिहास व्यासदेव के सुनाया, ये मैंने कैसे भगवान की प्राप्ति की। नारद जी कहने लगे, हे व्यासदेव, मैं कुछ पिछले जन्म में फर्स्ट लाइफ आई वाज बोर्न इन द सन ऑफ
है ना? क्या बोले, मेड सर्वेंट, दासी पुत्र के मैं जन्म दिया। मेरे माँ जो है विधवा थी, है ना? और उनके मैं एक लौता बालक था। एक लौता समझ लो, ओनली वन हर सन, एक लौता मैं बेटा था और छोटा था, मैंने 5 साल का था उस समय, है? मेरे माँ जो है जीवन धारण करने के लिए दूसरे के घर में काम करती थी, है? ऐसा नहीं, दूसरे घर में काम करती थी, है? पोछा फोछा और जो कुछ भी करती थी, है? तो माँ इसी प्रकार मुझे लालन पालन पोषण किया, किसी प्रकार से दुख कष्ट से, है? एक समय क्या हुई कि बरसात के समय जो है चातुर्मास्य कहा जाता है, 4 months, है? ऐसे नहीं, अपना रथ जाता है चातुर्मास्य काम है, 4 महीने जो है उस समय संत महात्मा कहीं जाते नहीं हैं, एक स्थान पर संत महात्मा रहते। ठीक उसी समय ये चातुर्मास्य के समय, बरसात के समय हमारे गांव के समीप निकट में बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा सब आए हुए थे, रहने लगे संत महात्मा, भजन साधन करने लगे गांव के पास, है? देखो मेरा माँ नित्य प्रत्यह संत महात्मा के पास जाती थी, है? और संत महात्मा के पास जाके संत महात्मा की सेवा भी करते, है? क्या करते थे संत महात्मा, वो स्थान को क्या करते, सफाई कर देते थे, थोड़ा झाड़ू लगा दिया, झाड़ू पोछा कर दिया, है? और क्या करते, है? तो नारद ऋषि करने लगे। मैं छोटे बालक होने के नाते मैं माँ के साथ में मैं जाता था, है? और संत महात्मा जब भजन करते थे वहीं पर बैठ जाता था, संत महात्मा जब हरि कथा बोलते थे मैं निविष्ट होकर के बी अटेंटिवली आई लिसन हरि कथा। देखो मैं ये बताता हूँ, हर समय ये कथा में इंटेंस देता हूँ, जो सच्चे साधु है ना वो उसकी प्रेम प्रति करते हैं जो कथा सुनते हैं, सच्चा साधु संत महात्मा उसी की कहा जाता है जो उनकी कथा सुने, क्योंकि यही कथा ही साक्षात भगवान है। तो भगवान की कथा नहीं सुना तो अब सब बेकार हो जाएगा, है? इसलिए भागवत में भी श्लोक है, कहते हैं कोई 4 आश्रम वर्ण के पालन करे, यदि भगवान की कथा नहीं सुना वो सब बेकार हो जाएगा, है? क्लास क्या श्लोक है जानते हो, है? विशक्सेन कथासु नोत्पादे यदि श्रम एव ही केवलम। भगवान श्री हरि के कथा नहीं सुना और सब नियम को पालन कर लिया, बोले सब बेकार है, सब बेकार हो गया। इसे कहता विशक्सेन कथासु नोत्पादे यदि श्रम एव ही केवलम। भगवान की कथा नहीं यदि सुना, बहुत कुछ कर लिया, काम कर लिया, इधर उधर कर लिया, बोले तुम्हारे सारे क्या हो गए, सब बेकार हो गए, है? मिट्टी में घी को डाल दिया, बेकार हो गया, है? छाई फस में घी डाल दिया, बेकार हो गया। इसलिए हरि कथा श्रवण। इसलिए नारद ऋषि स्वयं कहने लगे, ये वैष्णदेव मैं नित्य प्रत्यह संत महात्मा के सन्निकट में बैठ करके हरि कथा श्रवण करता था। समझ में आ जाए भी नहीं जाए, सब कथा आपको समझ में थोड़ी आ जाएगा, हाँ? नहीं आएगा, नहीं आ जाए कोई बात नहीं, बैठ जाओ बस। हम तो इतना ही कहते, समझ में आ जाए अथवा नहीं भी आ जाए बैठो दो, है? तो नारद ऋषि का भी उसी प्रकार मैं बैठ करके संत महात्मा मुखार बिंदु से हरि कथा श्रवण करता था, है? इससे संत महात्मा मेरे प्रति बहुत प्रसन्न हुए, है? और प्रसन्न होकर संत महात्मा मुझे भी उनके उच्छिष्ट भी प्रदान किया, उच्छिष्ट रेमिनेंस, है? और संत महात्मा के प्रसन्न होकर के मुझे भी मंत्र भी दे दिया। क्या मंत्र दिया था जानते हो? नारद ऋषि कौन सा मंत्र प्राप्त किया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो इस मंत्र को मुझे दे दिया। इस मंत्र के भी आप जब भी कर सकते, कीर्तन भी कर सकते, दोनों ही कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
वासुदेवाय नंदनंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नंदनंदनाय। और जब भी कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले मंत्र इतने पावरफुल, मेरे हृदय द्रवीभूत हो जाता था। मैं संत महात्मा छोड़ करके जाना नहीं चाहता था, किंतु संध्या शाम होने के बाद आफ्टर सनसेट माय मदर बाय फोर्स डेड है। शाम होने के साथ ही साथ मेरे माँ मुझे जबरदस्ती घर लेकर के जाती थी। मैं जाना नहीं चाहता था, किंतु संत महात्मा मेरी प्रीति हो गया ना है। मैं सोचता था संत महात्मा पास बैठे रहूं है। भाई साधु के पास बैठना ये कोई साधारण बात नहीं होता। बृहद भगवतामृत ग्रंथ में सत्संग की महिमा वर्णन करते हुए से सनातन गोस्वामी पाद गाते हैं। बोले कुछ संत महात्मा जी विषय कथा भी बोले है, तो भी वहां पर बैठ जाओ है। अरे आज संत महात्मा तो इधर उधर के बात कर रहे हैं। बोले कई बात नहीं है, संत महात्मा के पास बैठ जाओ, उसी तुम्हारे कल्याण है। चल आगे की कथा सुनाता हूँ। अनाथ ऋषि बोले मैं जाना नहीं चाहता था, किंतु शाम होने के साथ ही साथ जब अंधेरे हो जाती थी, मेरे माँ मेरे प्रति स्नेह होने के नाते मुझे पकड़ के ले जाती। मैं रोता था है, बालक है जाना नहीं, भैया भैया मैं नहीं जाऊँ, क्योंकि माँ मुझे पकड़ कि माँ के स्नेह है ना। बालक के अकेला छोटा बच्चों को कहाँ छोड़ कर चले जाएंगे हैं। 5 साल के बालक है, इन्हें जबरदस्ती लेकर गया। किंतु राजसी करने लगे। संत महात्मा के संग के बाधक कौन हो गया, ऑब्स्टैकल्स कौन हो गया, मेरा माँ है। इसलिए मैं भगवान की प्रार्थना करता था कब मैं सदा सर्वदा संत महात्मा के साथ में रहूं और कहीं नहीं जाऊं, प्रार्थना करता। एक दिन सचमुच भगवान ने मेरा प्रार्थना को सुन लिया, स्वीकार कर लिया। एक दिन शाम के समय गोधूली लग्न समझते हो है, दस है, सूर्य अस्त होने वाले हैं, अंधकार भी आया नहीं और पूरा दिन भी नहीं है। उस समय मिडिल जो होता है, उसी समय गोधूली लग्न में मेरे माँ क्या कर रही थी, दूध काट रही थी है। My mother she was milking the cow. In the meantime, one black serpent, कृष्ण साहब को आकर के माँ के पीछे आकर के उसको डांस दिया, काट दिया। मेरे माँ लुढ़क गई, माने मर गई। नारसी कहने लगे मेरा माँ जब मर गई मैं बहुत आनंद हो गया। क्यों? आज से कोई मुझे रोकेगा नहीं संत महात्मा के संग करने के लिए। बोलो वृंदावन बिहार है। देखो है, इसलिए नारसी कहने लगे। फिर 4 महीने के बाद संत महात्मा जब उस स्थान को छोड़कर चले गए, मैं भी संत महात्मा के साथ उनके साथ चरण करने लगे। और इसी प्रकार उस मंत्र को मैं जपा जो संत महात्मा से मुझे मंत्र मिली। कौन सा मंत्र मिला था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ना जाने कितने तीर्थ स्थल को मैं दर्शन किया है। उत्तर पश्चिम दक्षिण पूरा जितने भी भारतवर्ष में जो तीर्थ स्थल है, जितने जो नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, समस्त नदियों में स्नान किया, तीर्थ स्थल को दर्शन किया और वही मंत्र जप करने लगे। कितने शुद्ध संत महात्मा की मुझे दर्शन मिला। ऐसे नाम जप करते करते, मंत्र जप करते करते मेरे हृदय में उत्कंठा जगा, मैं एक बार भगवान के दर्शन कर लूं। तो एक मैंने भगवान को मैं प्रार्थना की, प्रभु आप कृपा करके अपने दिव्य मूर्ति को मुझे दर्शन कराइए। एक दिन इसी प्रकार मंत्र जप करते करते संग भगवान श्री नारायण है, शंख चक्र पद्मधारी नारायण कौस्तुभ मणि धारण किए है। इतने उनके सुंदर दिव्य मूर्ति जो है मेरे पास प्रकट हो गया है। वो भी मानो बिजली के भांति उतने समय के लिए मेरे पर प्रकट हो गया। बस ऐसे भगवान के दिव्य मूर्ति के दर्शन करके मैं क्या हो गया,
मूर्छित हो गया, कंप्लीट फेंटेड, क्योंकि भागवत दर्शन में इतने आनंद होता है। ये नारद ऋषि मूर्छित किस लिए हो गया? वाई नारद ऋषि फेंटेड, मूर्छित किस लिए हो गया? बोले भगवान की इतने सुंदर मूर्ति विग्रह जो है भगवान हृदय में इतने आनंद उल्लास हुआ है, so much ecstatic mood coming in his heart. So now this is told, completely fainted, मूर्छित हो गया। ना जाने कितने समय मूर्छित होकर पड़े रहे। इसके बाद मेरा मूर्छा भंग हो गई, और किंतु वो स्मृति रखा, वो याद रहा, ये भगवान की इतनी सुंदर दिव्य अलौकिक जो मूर्ति है भगवान है, और उसी के स्मरण करके मैं भगवान की प्रार्थना की, प्रभु दोबारा मुझे आपको दर्शन दीजिए, दर्शन कराइए, दिव्य मूर्ति के मुझे दर्शन दीजिए। किंतु उस समय ट्रांसेंडेंटल साउंड, एरियल साउंड केम, हे नारद मेरे विग्रह भी जो है तुम्हें पुनः दर्शन नहीं होगा, है तो मैं रोने लगी। फिर दोबारा वो एरियल ट्रांसेंडेंटल साउंड केम, हे नारद तुम मुझे प्रांचभौतिक शरीर जब छोड़ दोगे, ये हमारे शरीर क्या कहा जाता है? प्रांचभौतिक समझते हो, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश। काल कहा था ना कि हम लोग घर बनाते हैं ईंट पत्थर दे करके, है हमारे शरीर भी एक घर है। ये शरीर भी घर किससे बना हुआ है? 5 प्रकार मटेरियल से, 5 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है ये घर है, इसी कहा जाता है पांचभौतिक शरीर है। उसी प्रकार एलियन साउंड दिव्य आगे साउंड आगे करने लगे, नारद तुम्हारे ये जब पांचभौतिक शरीर को तुम त्याग दोगे और इसके पश्चात तुम्हारा दिव्य प्राकृत शरीर प्रकट होगा, है उस दिव्य अपराकृत शरीर जिसे कहते हैं चित्त शरीर कहते हैं। हम क्या शरीर कहते हैं? चित्त शरीर। वो तुम्हारे शरीर में है, ये देह रूपी में आपके अंदर में है, आपके पता नहीं है, आज समझे? एक घर के अंदर दूसरी घर है, दूसरी घर के में अंदर और एक घर है, आप जानते नहीं। ये हमारे एक घर है, इसे कहते हैं पांचभौतिक शरीर, इसे कहते हैं स्थूल शरीर कहा जाए, ग्रॉस बॉडी। इस ग्रॉस बॉडी के अंदर और एक शरीर है, क्या उसको क्या कहा जाता है? सटल बॉडी। देखो सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार चित्त, और उसके अंदर क्या है? आत्म शरीर है आपका, है उसके भी हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, जो कुछ देख रहे उसके सब है। वही भजन करते करते, गुरु प्रदत्त मंत्र आदि जप करते करते वो आपके हृदय क्या होगा? प्रकाशित होगा, मैनिफेस्ट। इसलिए कहने लगे, नारद तुम्हारी ये पांचभौतिक शरीर तुम जब त्याग दोगे और तुम्हारी अपराकृत दिव्य कलेवर शरीर प्रकट होगा, और तब तुम मेरे धाम वैकुंठ धाम में तब तुम आओगे और उस अपराकृत दिव्य शरीर के द्वारा तुम मुझे दर्शन करेगा, तुम मेरा सेवा प्राप्त करोगे। मेरे कहने की तात्पर्य है, और मनुष्य की और जीवों की क्या है? ये है तुम्हारे पास, केवल उसके प्रकाशित करना है। सूक्ष्म रूप में है वो, बहुत लटन। जैसे एक बीज है ना, सरसों के दाना देखा आपने? सरसों जानते हो? ब्लैक मसासी है। देखो एक सरसों के दाने में उससे क्या रहता है? उसके पत्ता रहता है, बीज, सरसों के बीज है ना, ये रस्सी बनता है ना, सरसों के बीज इतने छोटा है। अच्छा उसके अंदर में क्या रहता है? उसके पत्ता भी है, सरसों के पत्ता भी है, जड़ भी है, सब अंदर में सब कुछ है। कैसे पता चलेगा? नहीं, वो सरसों जो बीज को जो है, दाने के जो है, आप पानी में डाल दो, हैं? पानी में डालने से क्या होगा? पहले क्या होगा? वो देखो उससे क्या आएगा? खुल जाएगा, शक्क हो जाएगा। फिर उससे के 2 दिन के बाद क्या होगा? वो उससे अंकुर आ जाएगा, हैं? अंकुर आता है ना, क्या बोलते? स्प्राउट आएगा, हैं? आता ना। फिर उसके मिट्टी में रखो, 2-1 दिन के बाद फिर वो छोटा सा पौधा के रूप धारण करेगा, पत्ता आएगा। फिर 2-1 महीने के बाद देखो सुंदर एक पेड़ जैसे दिखाई पड़ेगा, फिर उसमें फूल आएगा, फिर सरसों आएगा। तो ये जो सब कुछ उस किसमें था? वो बीज में ही था, है? किंतु बीज के यदि सरसों के दाने के यदि आप ऐसे काटो, मैश करो, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, किंतु देखो उसमें सब कुछ है।
ठीक उसी प्रकार जीवात्मा के स्वरूप आपके पास है, आपके स्वरूप आपके पास है। उसको केवल प्रकाशित करना है। कैसे? बोले श्रवण कीर्तन जले करह सेचन। हरि कथा रूपी श्रवण कीर्तन यही जल है, जल ही जीवन है। हरि कथा रूपी जल उसमें देना पड़ता है, और फिर वो धीरे धीरे आत्मा की वृत्तियां जो है वो विकसित होगा, प्रकाशित होगा, है हाँ समझ में, इसकी कह रहे हैं। और फिर धीरे धीरे जो आत्मा की वृत्तियां जो प्रकाशित हो जाएगा, ये हमारे जड़ शरीर क्या होगा, अपने आप वो नष्ट हो जाएगा। पतंती श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी इस कथा को भी सुना है। पतंती पंचभौतिक देह का। नाथ जी कहने लगे इसी प्रकार मेरा पंचभौतिक देह शरीर जब चला गया और मुझे दिव्य शरीर मुझे प्राप्त हुई, अपराकृत दिव्य शरीर, उस शरीर को प्राप्त करके मैं वैकुंठ में गए और साक्षात नारायण भगवान को मुझे दर्शन मिला। बोलो वृंदावन बिहारी। यही भजन साधन। ये भजन करते करते पहले आप आत्म शरीर को उपलब्धि करो, है सेल्फ रियलाइजेशन जिसको हम कहते हैं। आत्म शरीर के क्या करो, उपलब्धि करो, सेल्फ रियलाइजेशन है। आत्म शरीर की उपलब्धि जब होगा तब भगवत उपलब्धि होगा। पहले क्या होता है, इसलिए कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म उपलब्धि है। आत्मा की उपलब्धि हो जाए फिर भगवत उपलब्धि होगा, है। तो यही समझते जो है लिखा गया शास्त्र में, भगवत भजन करते करते ये सब होगा। किंतु निष्ठा के साथ जप करना चाहिए। मंत्र जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, गुरु मंत्र गायत्री मंत्र आदि जो गुरु से प्राप्ति हुआ है उसके अत्यंत दृढ़ता के साथ हर रोज जप करो, है भगवत नाम करो, है यही शास्त्र का तात्पर्य है। और करते करते समय आने पर होगा। जब भक्तिमान ठाकुर कहते हैं भजिते भजिते समय आसीले ये देह छाड़िया दीव। बोले भजन करते करते जब समय आएगा वो अपने आप ये पंचभौतिक शरीर चला जाएगा। जैसे सांप है ना, जैसे सांप का जो क्या बोलते हैं, ये चूल्हा जो है स्किन है, चमक, वो क्या करते हैं, वो देखो अपने आप वो छोड़ करके बाहर आ जाता है। देखा कभी कभी सांप के जो है वो स्किन जो है तो अपने आप बाहर आ गया। और ठीक उसी प्रकार भजन करते करते हमारी ये जड़ शरीर जो है पंचभौतिक शरीर यहीं पर रह जाएगा और चित्त शरीर हम प्राप्त करके भगवत धाम में चले जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। इसलिए आप लोग सब भजन करो, हरिनाम करो, गायत्री मंत्र आदि जो प्राप्ति हुई, गोपाल मंत्र जो मंत्र आपकी प्राप्ति हुई उसके निष्ठा के साथ जप करते हैं, जप करते हैं, भगवत नाम आदि जप करते के साथ है। गौर प्रमाण सबको प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो, अच्छा ये दोनों के जपमाला ले, तुलसी माला ले। अच्छा आपके कहाँ जपमाला कहाँ है, ला ये लोग आसमन करा दो, आसमन हमारा उसके पास तुलसी की जपमाला है।